Hello everyone, I'm Surbhi Khurana, a counselor from Sri Tara School of Wellbeing. Today I'm going to talk about what is mental health and what is the need to talk about it. World Health Organization, that is WHO, का कहना है कि हमारी अच्छी हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों से दूर रहना नहीं है. उनके अनुसार हेल्थ का मतलब है कि इफ़ यू आर फिजिकली हेल्दी, mentally healthy and socially healthy, then only you are healthy. और अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करते हुए अगर आप समाज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप हेल्दी हैं. यानी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, आपका काम भी अच्छा है और आपके रिश्ते भी मज़बूत हैं और आप खुद के लिए समय भी निकाल पा रहे हैं, तभी आप हेल्दी हैं. मेंटली हेल्दी होने का मतलब है कि जब आप अपने ही थॉट प्रोसेस को देख सकें, अपने इमोशंस को भी देख सकें एंड डू समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ, एंड देयर इज़ अ बैलेंस इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. See how connected you feel with the people around you, with your environment, and how do you react when you're stressed? It's possible that you have more than enough money and you're good at your work, but your relationships are not great. Or maybe you have great relationships with your spouse, parents, friends, but you're not great at your work. Or maybe you have great relations and you're good at your job, yet you feel trapped inside. You feel an emptiness, a void inside. And even then, in either of these three cases, you cannot be called mentally healthy. Actually, a combination of all this is health. Absence of disease is not health. बीमारी हुई और आपने उसे ठीक कर लिया, वो काफ़ी नहीं है. उसके बाद भी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बचता है, वही है मेंटल हेल्थ. तो एकदम से कोई बीमार नहीं होता और एकदम से कोई ठीक भी नहीं हो जाता. हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे हिस्सों में चलती है कि कभी थोड़ा सा ख़राब, थोड़ा सा ठीक, कभी बहुत ठीक, कभी बहुत ख़राब. ठीक ऐसे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी कभी बस सो कभी बहुत अच्छी, कभी बहुत ख़राब. इन तीनों के बीच से गुज़रते हुए जब आप अपनी लाइफ में सही तरीके से आगे चलते हैं, उसे मेंटल हेल्थ कहते हैं. फिज़िकली बीमार होना बहुत नॉर्मल सी बात है. आई डाउट देयर इज़ एनी पर्सन हु हैज़ नेवर फॉलन फिज़िकली इल इन देयर लाइफ स्पैन. Similarly, every person does have mental issues as well. Weak moments या difficult times सभी के मोमेंट लाइफ में आते ही हैं. Any time in anyone's life, something can happen which they feel they cannot handle. अब जो लोग दूसरों को हंसाते हैं तो लोगों को लगता है कि इसे तो कोई दुख, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो बढ़िया बंदा है, खुद भी हंसता रहता है, औरों को भी हंसाता रहता है. आई एम श्योर आपका भी कोई कज़न, कोई फ्रेंड या कोई जानकार होगा ही जो बहुत जोक सुनाता होगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. लेट मी टेल यू अ स्टोरी आई हर्ड अबाउट दिस. आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, बट इट्स डेफिनेटली रिलेटेबल. Once a man goes to a psychiatrist and says, I'm just not able to laugh. मुझे कभी हंसी ही नहीं आती. तो इस पे साइकेट्रिस्ट ने उनको बोला कि आजकल तो इतने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, फ़नी वीडियोस हैं, शॉर्ट्स भी हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी फ़नी वीडियोस लोग अपलोड करते ही रहते हैं. Why don't you watch some of those? I'm sure they'll make you laugh. To that the person replied, I have tried all that, but it didn't work. Then the psychiatrist said, why don't you go to this circus nearby? I've heard that the joker of that circus is very good. He will definitely make you laugh. To that the person replied, Doctor, I am the joker of that circus. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेंटली कोई भी कभी भी बीमार तो पड़ ही सकता है. Like I said before, anyone can feel mentally weak and helpless. Now let's see those problems which you guys can face at your age. That is, those mental challenges that college students face and come to us for. The problems asked to us by maximum college students is how to make friends,
दैट इज़ दोस्त कैसे बनाएं और किन्हें बनाएं. Second most common problem is that of relationships. Usually college students are confused whether to be or not to be in a relationship. Since relationships take up a lot of your time, and this is the time to build your career as well. And for those of you who choose to be in a relationship, the problem then is of breakups. And lastly, and most stressful problem, which is not just your problem but also your parents' problem, which is which career you should choose. Now let's look at these problems one by one. First issue is friendship. I would say don't have shallow friendships where you're just making fun of each other and laughing in a group. Make friends with someone who you can open up to completely and say whatever you feel without the fear of getting judged. And the other side of the coin is you have to listen to whatever your friend is feeling as well and be there for him or her. Most of the time, I see not just college students, even adults cannot even open up completely to their so-called best friend. You need to understand that where there is good, there will be bad. Where there is happiness, there will be sadness. Where there is something sweet, there will be bitter. You have to accept that every day is not going to be a good day for you. But social media and the world today has projected that we deserve the best at everything, or we need to be the best at everything. Right here, we need to change our mindset. We may deserve the best, but it does not mean that we will get the best. देखिए, घर पे जब बच्चा छोटा होता है, जो वो चाहता है अक्सर उसे मिल ही जाता है. जब वो बाहर की दुनिया में जाता है तो ऐसा नहीं होता, और जब आपको वो सब नहीं मिलता जो आप चाहते हैं तो आप इमोशनली वीक फील करते हैं. आपको लगता है मैं डिज़र्व तो करता हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा. एक्चुअली नो वन इज़ डिज़र्विंग. वी वर्क हार्ड, वी अर्न इट, वी लूज इट, वी अर्न इट बैक अगेन, एंड दिस इज़ द नेचर ऑफ लाइफ. I would say it's no one's responsibility to motivate you. You have to take this responsibility for yourself. कोई मनचाही चीज़ ना मिले तो आप डिप्रेस हो जाते हैं और ख़ुद को ही लेबल करने लगते हैं कि मैं बहुत सैड हूँ या डिप्रेशन में हूँ. आपकी किसी से दोस्ती टूट जाए तो आप फ्रस्ट्रेट ही हो जाते हैं. एंड इफ़ यू ब्रेक अप देन तो आप सेल्फ डिक्लेयर्ड डिप्रेशन में ही चले जाते हैं और फिर खुद को समझाते हैं कि ये तो एक फेज़ है, निकल ही जाएगा. आज की दुनिया में जहाँ इतने डिवोर्स होते हैं तो ब्रेकअप तो हो ही सकता है. आप खुद को तैयार रखो कि यहाँ स्वीट एंड बिटर कुछ भी मिल सकता है. आपको कभी पेन मिलेगा, कभी फील गुड फैक्टर. अगर आप सोचते हैं कि आपका हर दिन बेस्ट होगा और आपको हर चीज़ में बेस्ट मिलेगा तो आप रिलेशनशिप में एंटर ही मत करिए, क्योंकि लाइफ की ऐसी नेचर नहीं है कि आप जो चाहें आपको वही मिलता रहे. अब आते हैं करियर की बात पे. देखिए, करियर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सक्सेस इन लाइफ. वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल. और जो भी बच्चे स्कूल में सीरियसली पढ़ते हैं वो इसलिए कि वो जीवन में सफल होना चाहते हैं. बचपन से ही वो पढ़ने में सीरियस होते हैं. तो यही एक कारण है जिससे आप स्ट्रेस भी लेते हैं. और इंटरनेट पर जोक तो आता ही रहता है कि नंबर 1 पे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस लेते हैं, नंबर 2 पे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉमर्स लेते हैं, और नंबर 3 पे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्ट्स लेते हैं, और नंबर 4 पे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ 10 तक ही पढ़ते हैं और ये चॉइस ही नहीं बना पाते कि आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें, और नंबर 5 पे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो 10 तक भी नहीं पढ़ते. और कहा जाता है कि जीवन में सक्सेस का क्रम इसके विपरीत होता है. दैट इज़, सक्सेस इज़ नॉट रिलेटेड टू द मार्क्स यू गेट इन स्कूल और कॉलेज. जो साइंस पढ़ते हैं बच्चे वो बाद में इंजीनियर्स बन जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं. उसके बाद आते हैं वो बच्चे जो कॉमर्स पढ़ते हैं, वो आगे चल के MBA कर लेते हैं और इन MBAs के नीचे ही तो इंजीनियर्स काम करते हैं. और फिर आते हैं वो बच्चे जो आर्ट्स पढ़ते हैं, वो आगे जाके IAS बन जाते हैं और इन IAS के अंडर MBAs काम करते हैं. उसके बाद वो आते हैं जो 10 तक पढ़ पाते हैं, वो पॉलिटिशियंस बन जाते हैं और इन पॉलिटिशियंस के अंडर ही तो IAS आते हैं.
और जो इसके भी बाद आते हैं, जो 5वीं या 6ठी या 10वीं से कम तक पढ़ते हैं, वो बाबा बन जाते हैं। और अक्सर पॉलिटिशियंस इन बाबाओं के आगे ही तो सर झुकाए पाए जाते हैं। इस जोक में कुछ हद तक रियलिटी भी है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में अच्छे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में सक्सेसफुल हों ही। कितने ही टॉपर्स लाइफ में बस एवरेज ही रह जाते हैं, और जो स्कूल में पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं होते वो कभी कभी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। आई एम श्योर आपके आसपास भी ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे ही। What I mean to say is, your academic qualification, your school, college marks have no direct link to how successful you will be in life. इसलिए आप पढ़ें ज़रूर, लेकिन पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। देखिए, 3-4 तरह के काम हैं जो आप एज करियर चूज़ कर सकते हैं। पहला तो ये कि अगर आपकी फैमिली में कोई काम है, जैसे कि या कोई ज्वेलरी शॉप हो या ग्रोसरी शॉप हो या आपकी कोई इंडस्ट्री हो, तो आप उसी बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं, उसी में कुछ इनोवेशंस ला सकते हैं। दूसरा ये है कि अपने किसी पैशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या कोई स्पोर्ट। आजकल तो और भी बहुत से काम हैं, जैसे कि कितने ही लोग सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर एज यूट्यूबर बनकर कोई स्किल सिखा रहे हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर बनकर कोई अपना करियर बना रहे हैं। तीसरा है कि कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेके, जैसे इंजीनियरिंग, MBA, CA या मेडिसिन पढ़ के आप इसी फील्ड में कोई जॉब कर सकते हैं या इससे रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं। ऑल्दो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कितने ही इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी अपनी प्रैक्टिस छोड़कर कुछ और करने लगते हैं, जैसे डॉक्टर रितेश मलिक। ही इज़ अ popular doctor who practiced for a few years and now has become an entrepreneur and an angel investor. कितने ही इंजीनियर स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाते हैं, जैसे कि अभिषेक उपमन्यु, और कितने ही इंजीनियर्स फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते हैं, जैसे कि कृति सेनन, तापसी पन्नू। आज के टाइम में एक और भी काम है, और वो है स्टार्टअप्स का, यानी कोई नया बिजनेस शुरू करना। इन सब के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ पता भी होगा, और there is a very popular TV show about all this which is called Shark Tank. अब आपके मन में आ रहा होगा बेस्ट क्या होगा, तो ये डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल है, और ये डिसीजन कोई आपके लिए नहीं ले सकता। और फिर ऐसा तो नहीं है कि आपको सब कुछ मिल रहा है और आपको चूज़ करना है। सबसे पहले तो यही देखना होगा कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और आपके आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, और आपका कंफर्ट किस में है। अगर आपको पैशन की तरफ जाना है तो उसमें हार्डवर्क करना हार्डवर्क नहीं लगता, लेकिन पैशन को ढूंढना इतना आसान नहीं है। लोगों की आधी उम्र बीत जाती है ये जानने में कि उनका पैशन क्या है। और अगर आपको दिख भी जाए कि सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग या कोई स्पोर्ट में आपका पैशन है, तो इसमें करियर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। There is a lot of uncertainty and competition in this field. But you can be aware of these factors and then decide to make a career in your passion. Let me share with you my own example. I did my graduation in maths from Delhi University. Then I decided to do an MBA. तो मैंने 1 साल ड्रॉप करा और MBA के लिए एंट्रेंस दी। मेरा एक हैदराबाद में एक MBA कॉलेज में एडमिशन हो गया। वहाँ मैंने 1-2 महीने बताए और फिर मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं है। I came back and did my masters in maths again from Delhi University. After that, I got placed in a firm in Bangalore as a business analyst. I worked there for 5-6 months and I did not like that job. So I came back to Delhi. Then I seeked counseling because I felt मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. And मुझे counseling से इतना फ़ायदा हुआ that later I started working with that counselor as well. And I wanted to spread this because I could see there were other people जो परेशान थे मेरी तरह पर शेयर नहीं कर रहे थे. तो मैंने एज अ काउंसलर थोड़े साल काम करा. Then I got married. My husband was in merchant navy, so I went on the ship with him and I quit my job. After about 2 years,
I decided I want to be on land, and I started working with my cousin who was an interior designer, and I started handling the business development part of the business. उसके लिए मुझे साइट्स पे भी जाना पड़ता था, क्लाइंट्स को पिच भी करना पड़ता था, लेबर से भी डील करना पड़ता था. So that work had a lot of involvement. So once I had a baby, I thought I cannot continue with this. So I started concentrating on bringing up my baby for a while. वो जब थोड़ा बड़ा हुआ, I got back to counseling and I joined Sri Tara School of Wellbeing. And a few years back मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी में इनरोल कर लिया. अब मेरी मास्टर्स इन साइकोलॉजी ख़त्म ही होने वाली है. So by my example, I just wanted to tell you that each one of us is like a seed and there are infinite possibilities for each one of us. लेकिन किसी भी बीज को देखकर तो ये शायद बताया भी जा सकता है कि ये किस पौधे का बीज है, पर एक इंसान को देख के कोई नहीं बता सकता कि उस इंसान के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ जुड़ी हैं. उसको खुद भी नहीं पता होता. इसको जानने के का एक ही तरीका है कि आपको अलग अलग मिट्टी में अपना टाइम बिताना होगा. दैट इज़ डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करने होंगे और देखना होगा कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है. बात हो रही है करियर की. देखिए, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल करियर के लिए ज़रूरी है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी. I have told you 3-4 things which might affect your mental health. Besides this, there can be failure, rejection, or some death in the family or friends. Or if a close one is diagnosed of some life-threatening disease, then these things can also cause mental stress. Lifestyle choices, too much junk food, lot of smoking, and excessive consumption of alcohol or drugs can lead to mental health issues. And spending too much time on social media is harmful for your mental health too. जब आप खुद को यूजलेस इन्फॉर्मेशन से भर देते हैं तो आपका माइंड डल हो जाता है, और अगर आप खुद को हर वक्त ऑक्यूपाइड रखते हैं तो आपका ध्यान कंसिस्टेंटली अनहेल्दी एंड अनप्रोडक्टिव चीज़ें खींचता है, जैसे कि टीवी, सोशल मीडिया, या सिर्फ फ़ोन पे गॉसिप करते रहना, या फिर जंक फूड खाना और एक्सरसाइज ना करना. इस सब से आपका ब्रेन डल हो जाता है और उसकी थिंकिंग कैपेसिटी भी अफेक्ट होती है, और ये चीज़ें आपको काफ़ी स्लो भी बना देती हैं. फिर आप टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जैसे कि खुद को लोगों से घेर लेना, कभी कभी अपना दुखड़ा रो देना उनके सामने, या फिर टेस्टी खाने से किक लेना. आई एम श्योर आपको भी ऐसे बहुत सारे टेम्प्रेरी सोल्यूशंस पता ही होंगे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. बट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ तो रूट कॉज पे जाना होगा. आपको अपने ही मन की नेचर को जानना होगा, जीवन के स्वभाव को समझना होगा. तभी आपको ये भी पता चलेगा कि जिन चीज़ों को आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो या फूड या सोशल मीडिया, if you do too much of any of these, then that only starts causing you stress. और स्ट्रेस ही तो कारण है हमारी ख़राब मेंटल हेल्थ का. और ख़राब मेंटल हेल्थ से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी डेली फंक्शनिंग्स में इश्यूज आते हैं, रिश्ते भी अच्छे नहीं रहते, और हमारी फिज़िकल हेल्थ भी डिटोरिएट करती है. यस, हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. हमारा बर्थ राइट है खुश रहना, लेकिन बाकी सब इमोशंस जैसे कि रोना, उदासी, गुस्सा भी तो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. हम केवल काम क्यों करते हैं उन चीज़ों पर जिनसे हमें हैप्पीनेस मिलती है? जिन चीज़ों पे हमें रोना आता है उन पर भी तो हमें काम करना ही पड़ेगा. आई एम टेलिंग यू ऑल दिस सो यू कैन गेट योर लाइफ ऑन ट्रैक एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम द ट्रैप्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन. और सबसे पहले तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में होना ही चाहिए जिससे आप हर बात कर सकें विदाउट एनी फियर और एम्बैरेसमेंट. खुलकर आप किसी से अपनी हर बात कह सकें. वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई मेंटर, कोई कज़न, आपका सिबलिंग या आपके पेरेंट्स, या अगर कोई नहीं है तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की.
देखिए, कहीं चोट लग जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते नहीं हैं, बट वाई डू यू हेजिटेट टू सीक हेल्प इन केस ऑफ मेंटल हेल्थ? जब भी हम मेंटली अनवेल होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, वी समहाउ गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। ज़्यादातर लोग एम्बैरेसमेंट की वजह से किसी को बताते भी नहीं हैं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। बट नाउ a lot of movie stars are also coming forward and telling us how they seeked help for mental health and how it is normal to seek help. सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी अगर आपको लगे कि आपका मन ठीक नहीं है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए। पर दिक्कत ये आती है कि ज़्यादा तो प्रोफेशनल्स हैं नहीं, और अगर प्रोफेशनल्स हैं भी तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है अफोर्डेबिलिटी की। और अगर प्रोफेशनल अवेलेबल है और आप अफोर्ड भी कर सकते हैं तो तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है सोशल स्टिग्मा की। आपको लगता है कि कहीं आसपास के लोग आपको वीक ना समझें, कहीं सोसाइटी आपको क्रेज़ी ना लेबल कर दे। हमारा ध्यान इस तरफ नहीं होता कि हमारा जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें चिंता होती है कि और लोग क्या सोच रहे हैं। ऐसे भी लगता है कि अगर हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प सीख करेंगे तो कहीं हमें लोग वीक ना समझें। देखो, दुनिया में कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं है जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता। कोविड आया, हमें लगा था कि पता नहीं क्या होगा, कौन बचेगा कौन जाएगा, लेकिन आज वो टाइम भी निकल गया। ऐसे ही आपकी हर मुश्किल को आँख में आँख डालकर देखिए और बजाय उससे डरने के उसके लिए जो कर सकते हैं करिए। If someone has cancer, they feel they're about to die. Although, if you get proper treatment, in some cases there is 90% chance of recovery, in some other cases there is 95% chance of survival, depending on where you have cancer and which stage you are at. So all I'm saying is, don't make a mountain out of a molehill. यानी किसी भी चीज़ का हवा नहीं बनाइए। बट मेरे बस ये कह देने से कि किसी चीज़ का हवा मत बनाइए, आपकी ये हैबिट जाएगी तो नहीं। लाइक सो मैनी पीपल से थिंक पॉजिटिव, बट क्या आप सिर्फ पॉजिटिव सोच पाते हैं? नहीं ना, आपके दिमाग में नेगेटिव भी आता ही है। अब कैसे किसी चीज़ का हवा नहीं बनाएं, इंस्टेड उसकी रूट कॉज पे पहुँचें, कैसे, इस बारे में सुमिता मैम फ्रॉम श्रीतारा's टीम विल टेल यू मोर। ओवर टू सुमिता मैम।